Hello, my dear children. Welcome to class 6 science, and today we are going to start with chapter number 4, exploring magnets. Let's begin the chapter. In this chapter, your main aim will be the introduction, discovery of magnet, magnetic material, non-magnetic material, types of magnet, poles of magnet, properties of magnet, making a compass, temporary and permanent magnet, uses of magnet. Now warm up. Have you ever wondered how magnetic stickers remain attached to doors of the fridge? Several cupboards, pencil boxes close with a click because they have magnet that pulls to shut. Try sticking a fridge magnet on a few articles in your house. Note down 5 articles that you are able to stick it on. What is magnet? Write 3 magnetic materials which are attracted towards the magnet. इंट्रोडक्शन। बच्चों, जब हम फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं और उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम क्या देखते हैं? थोड़ी देर में दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैग्नेट लगी होती है। You must have seen stickers that get attached to the iron surfaces like almirahs and doors of the refrigerator. In pin holders, the pin seems to be sticking to the holder. A magnet is fitted inside the refrigerator door, stickers and pin holders. Magnetics are also used in many other devices such as doorbells, televisions, computers, telephones, electric motors and generators. So what is a magnet? Any material that has property of attracting things made up of iron, cobalt or nickel towards itself is called as a magnet. मैग्नेट themselves are made from these metals iron, cobalt और nickel. तो मैग्नेट भी आयरन, कोबाल्ट और निकल की ही बनी होती है and it has the property of attracting these metals towards itself. Iron, steel or alloys of iron are always used to make magnet because iron is cheapest of the 3 metals. Magnets are made in different shapes and sizes. Discovery of magnets. तो children, discovery of magnets जो हुई थी वो हुआ था around 4000 years ago. क्या था? एक शेपर्ड था जिसका नाम था मैग्नीज. वो रहता था एक प्लेस जिसको हम बोलते हैं मैग्नीसिया इन नर्दर्न ग्रीस. तो एक दिन वो जैसे अपने भेड़ों को, अपनी शीप्स को चराने के लिए बाहर लेकर गया, तो वो एक स्टोन पे खड़ा था. उसकी जो स्टिक थी ना, उसका जो कोना था उसके ऊपर आयरन लगा था, उसके जूतों में भी आयरन लगा था. तो वो क्या देखता है कि दोनों चीज़ें उस रॉक से अटैच हो जाती हैं और उसको बहुत मुश्किल होती है उन्हें हटाने में. इसी से पता चला कि इसके अंदर जो ये रॉक उसको मिली थी, वो उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी. तो इसीलिए उस रॉक का नाम रखा गया मैग्नेटाइट ऑन द नेम ऑफ मैग्नीज, या फिर जिस जगह से वो मिली मैग्नीसिया, इसीलिए उसका नाम रख गया मैग्नेटाइट. These rocks were useful in finding directions. This is because when piece of this rock was suspended freely, तो हमने क्या देखा बच्चों कि जब उसने उसको फ्रीली सस्पेंड किया ना, तो उसने क्या देखा कि वो जो रॉक थी वो अपने आप को अलाइन करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. इसीलिए मैग्नेट्स आर यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन इन ओल्डन टाइम्स. It came to rest in north-south direction, therefore people started calling it lodestone. इसीलिए उसका नाम पड़ गया lodestone, जिसका मतलब होता है leading stone, राह बताने वाला stone. Later on, artificial magnets were made of iron. Artificial magnets come in different shapes, जैसे कि rectangular bar, cylindrical bar, U-shaped, horseshoe-shaped and dumbbell shaped magnets. मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल. ऐसा मटीरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मटीरियल, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है. लेकिन जो मटीरियल हमारी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक मटीरियल, जैसे वुड है, पेपर है. तो ये आपकी मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगे. एल्यूमिनियम है, ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगे. सो दीज आर नॉन मैग्नेटिक मटीरियल. The phenomena of attraction of magnetic material by a magnet is called as magnetism. तो मैग्नेटिज्म बच्चों किस पे डिपेंड करता है? इट इज एक्चुअली एन अट्रैक्टिव फोर्स जो मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ खींचता है, और इस फोर्स का नाम होता है मैग्नेटिक फोर्स. तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है? मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स है जो एक मैग्नेट एक्सर्ट करती है मैग्नेटिक मटीरियल्स पर.
द एरिया ऑफ द स्पेस अराउंड मैग्नेट, जहां पर हमें ये फोर्स फील होता है उस एरिया को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी जगह है जहां पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। तो अगर हम एक मैग्नेट की बात करें तो जो उसके पोल्स होते हैं वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। The area of space around magnet within which the magnetic force can be experienced by a magnetic material is called magnetic field of the magnet. तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट में बच्चों दो टाइप की आएंगी, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट क्या है? जो नेचुरल अकरिंग मैग्नेट्स हैं उन्हें हम बोलेंगे नेचुरल मैग्नेट, जो हमें नेचर से मिल रही है, जैसे कि लोडस्टोन जिसको हम मैग्नेटाइट भी बोलते हैं। तो ये जो मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैग्नेटिक पावर जो होती है वो बहुत कम होती है। आर्टिफिशियल मैग्नेट वहीं हम बात करें तो ये मैन मेड मैग्नेट्स होती हैं बच्चों। इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी बहुत अच्छी होती हैं और मैग्नेटिक पावर भी हम जितनी चाहें उतनी इंक्रीज कर सकते हैं। These magnets are made in various shapes and sizes as per the need. Example, disc shaped magnet, horseshoe magnet, cylindrical magnet, bar magnet, etc. पोल्स ऑफ द मैग्नेट बच्चों, अगर हम बार मैग्नेट की बात करें तो इसके दो पोल्स होते हैं। एक पोल होता है नॉर्थ पोल और एक पोल होता है साउथ पोल। अगर हम एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दे थ्रेड से तो हम क्या देखते हैं कि रुकने के बाद वो अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट करती है, यानी कि इसके पास दो पोल्स हैं। एक को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और एक को बोलते हैं हम साउथ पोल। तो अगर हम इस मैग्नेट को लेकर आते हैं बहुत सारे आयरन फिलिंग के पास तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारे आयरन फिलिंग्स हैं वो ज्यादातर पोल्स के पास ही चिपक जाते हैं। सेंटर में इतने ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे जितने आपको पोल्स पे मिलेंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि मैग्नेट के दो पोल्स हैं। इफ अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड इट ऑलवेज रिमेन्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि अर्थ इटसेल्फ इज अ मैग्नेट, इसीलिए जब आप किसी और मैग्नेट को यूज करते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट आउट करती है। द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, जो हमारी नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है उसे हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और जो साउथ की तरफ को पोल पॉइंट कर रहा है उसे हम बोलते हैं साउथ पोल। एवरी मैग्नेट हैज नॉर्थ एंड अ साउथ पोल। सर्कुलर मैग्नेट हो, चाहे हॉर्सशू मैग्नेट हो, सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो, कोई भी मैग्नेट हो, हमेशा पोल्स दो ही होंगे। इसका मतलब क्या है? पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। ऐसा नहीं होगा कि आपकी एक मैग्नेट के अंदर सिर्फ नॉर्थ पोल हो या सिर्फ साउथ पोल हो, दोनों ही पोल्स आपकी मैग्नेट में प्रेजेंट होंगे। अगर आप इस मैग्नेट को तोड़ते भी जाओ, छोटे से पीस में भी ले आओ, तो भी उसके अंदर एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट चिल्ड्रन, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट जैसे हमने अभी बात करी कि क्या है, मैग्नेट जो है अपने आप को अलाइन करती है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, इसे ही हम इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट बोलते हैं और इसे एंशिएंट लोग यूज करते थे टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। Ancient people know that if magnet is freely suspended, it always come to rest in a particular direction, that is north-south direction. This property is used to find direction anywhere on earth. तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी फाइंड करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि हम एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट लेंगे कि वो अपना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके रेस्ट करे। अब क्या इसके लिए चाहिए? हमें एक मैग्नेट चाहिए, थ्रेड चाहिए और एक लेबोरेटरी स्टैंड। इस तरीके से हम इसको एक्सपेरिमेंट को सेटअप करेंगे और हम क्या देखेंगे कि हमने जब मैग्नेट को रोटेट किया फ्रीली, उसके बाद जब वो रुकती है तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके रुक जाती है। The magnet always settle in the same direction, that is pointing north and south. Conclusion, a freely suspended magnet always comes to rest in north-south direction, demonstrating the directive property of the magnet. This property of the magnet proves very useful to find direction. A magnet compass use this property of magnet when it is working. तो जो हमारा मैग्नेटिक कंपस है बच्चों, उसके अंदर भी क्या होता है? एक नीडल होती है जो कि मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, जो पॉइंट करती है, हमें बताती है कि जो हमारा डायरेक्शन है वो क्या है। A magnetic compass consists of a magnetized needle pivoted at a point. Its north pole is generally painted red. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर इसका जो नॉर्थ पोल है वो हमने रेड से पेंट कर दिया है।
needle points in north-south direction. It is specially useful for sailors to determine and locate direction. Magnetic poles always exist in pair. As we have already discussed children कि magnet के अंदर दोनों ही poles present होंगे, कोई एक pole present नहीं होगा. चाहे हम मैग्नेट को कितने ही छोटे पीस में ब्रेक क्यों ना कर लें, उसके अंदर साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो है वो जरूर होंगे. When a magnet is broken into two pieces, each piece acts as a complete magnet. This implies that on breaking a magnet from middle, a new pair of north and south poles are formed at the broken end. In this way, each broken piece acts as a complete magnet. If we further break the newly formed magnet, again it will have a north and a south pole. Clickypedia. In some magnets, north and south poles are marked as north and south. In some magnets, the north pole is indicated by white dot. Sometimes north pole of the magnet is painted red and south pole is painted blue. Now look at the track your progress children. Name the following. A natural magnet. बताओ, इसका नाम तो आप सबको पता है. It is called as lodestone. Material from which artificial magnets are made. It is made from iron. आप यहाँ पे कोबाल्ट और निकल भी लिख सकते हो. Poles of magnet, दो poles होते हैं. कौन कौन से होते हैं? North pole and South pole. Like poles repel, unlike poles attract. बच्चों, अगर आप मैग्नेट की बात करते हो तो मैग्नेट में नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है. अगर आप इसके पास एक और मैग्नेट लेकर आओ जिसका आपको पता है नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है, अगर आप अपनी फर्स्ट मैग्नेट के पास के नॉर्थ पोल के पास दूसरी मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेकर आओगे तो आप क्या देखोगे कि आपकी दोनों मैग्नेट्स में रिपल्शन हो जाएगा. और वहीं अगर आप एक मैग्नेट में नॉर्थ पोल लेकर आओगे और दूसरे में साउथ पोल लेकर आओगे तो यू विल फाइंड कि दोनों के दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे. सो दिस इज द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और द रिपल्शन प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट, जो हमें बताती है कि लाइक पोल्स जो हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. Like poles of two magnets, that is north-north and south-south, repel each other, while unlike poles north-south and south-north attract each other. इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं जिसमें हम दो बार मैग्नेट्स लेंगे, मार्कर एंड अ थ्रेड. टेक टू बार मैग्नेट्स एंड मार्क देयर नॉर्थ एंड साउथ पोल विद अ मार्कर. सस्पेंड वन मैग्नेट फ्रॉम अ फिक्स्ड सपोर्ट यूजिंग अ थ्रेड. Bring the north pole of the second magnet near the south pole of the suspended magnet and note your observation. आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि दोनों में अट्रैक्शन हो जाएगा. Now bring the north pole of the second magnet near the north pole of the suspended magnet. और अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि दोनों ही मैग्नेट्स एक दूसरे से दूर हट जाएंगी, यानी कि रिपल्शन हो जाएगा. Unlike poles of two magnets attract each other, whereas like poles repel each other. तो इससे हमें पता चलता है कि अनलाइक पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और वहीं जो लाइक पोल्स हैं वो रिपेल कर देते हैं. अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट पोल्स. Attraction is maximum at poles of the magnet. It is so because these points have maximum magnetic strength. Children, जैसे हमने अभी बात करी थी, जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैक्सिमम होता है और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज एज वी मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द मैग्नेट. इसीलिए अगर हम आयरन फिलिंग्स के ऊपर मैग्नेट को घुमाते हैं तो ज़्यादातर आयरन फिलिंग्स जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ ही स्टिक होंगे, मिडिल की तरफ नहीं होंगे. These points have maximum magnetic strength. In fact, all the power of magnet is concentrated at its poles. Magnetic force keep on decreasing and becomes negligible in the center. तो इसको करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बच्चों. हमें क्या चाहिए? एक बार मैग्नेट चाहिए, आयरन फिलिंग्स चाहिए और एक शीट ऑफ पेपर. Spread iron fillings on the sheet of paper. Roll the bar magnet over it. Now remove the iron fillings from the magnet and repeat the step 2-3 times. हम क्या देखते हैं कि बार बार हमें एक ही चीज देखने को मिलती है कि आयरन फिलिंग्स जो हैं वो पोल्स की तरफ ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है एज कंपेयर टू द सेंटर. इसी से हमें पता चलता है कि जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम है पोल्स पे. दिस प्रूव्स दैट द मैग्नेट स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम एट इट्स पोल्स. Repulsive property. Repulsion is the best and surest test of magnet. This means repulsion is used to test whether the given object is a permanent magnet or not.
तो हम कैसे कर सकते हैं? टू टेस्ट द रिपल्शन इज द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। इसके लिए हमें चाहिए एक मेटल बार, एक परमानेंट मैग्नेट विद नॉर्थ एंड साउथ पोल मार्क्ड, अ थ्रेड एंड अ स्टैंड। तो हम क्या करेंगे? हम अपनी मेटल बार को सस्पेंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड ऑन द स्टैंड। Now bring the poles of permanent bar magnet near one end of the metal bar. Take the permanent bar magnet away, reverse it, then bring the south pole of it near the same end of the metal bar. तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि if the permanent magnet attracts one end of the metal bar and repels the other, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मेटल बार है वो भी एक मैग्नेट है, क्योंकि अगर हम साउथ पोल को लेकर आए थे तो वो उसका नॉर्थ पोल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, और अगर साउथ पोल को उसके पास लेकर आ रहे थे तो वो रिपल्शन शो कर रहा था। If the magnet attracts both the ends of the metal bar, then the metal bar is not a magnet. और अगर दोनों ही तरफ से वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है तो इसका मतलब जो मेटल बार हमें दिया गया है टेस्ट करने के लिए उसमें मैग्नेटिज्म तो है पर वो मैग्नेट नहीं है। Repulsion is the surest test of magnetism, not attraction. मेकिंग अ मैग्नेट। चिल्ड्रन, अगर आपको घर में भी मैग्नेट बनानी है तो वो भी हम कर सकते हैं बाय टेकिंग अ पीस ऑफ सॉफ्ट कोर ऑफ आयरन। अगर हम इस सॉफ्ट कोर ऑफ आयरन को रब करते हैं अपने एक बार मैग्नेट से तो उसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो इंड्यूस हो जाती हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब हमने एक आयरन पीस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को इंड्यूस कर दिया, उसके अंदर डाल दिया। Magnets can be made from iron pieces in many ways. The simplest method is rubbing the iron with the magnet. Making a magnetic compass, आप ये घर में भी बना सकते हो। इसके लिए आपको चाहिए एक कोक या फिर फोम का एक पीस। To make a magnetic compass, magnetize an iron needle. आप एक आयरन नीडल लो, उसे मैग्नेटाइज कर लो। कैसे करोगे? उसके ऊपर बार मैग्नेट को बार बार रब करके। Now insert the magnetized needle into small cork or foam. Add water in the cup or bowl and place the cork foam in it. तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी मैग्नेटिक नीडल है वो पानी से टच नहीं होनी चाहिए। The cork foam starts floating in water, ensures that needle does not touch the water. Compass is ready to work. Now note the direction in which needle points when the cork foam is floating. Rotate the cork foam in different directions. Once the cork or foam has stopped rotating, note the direction in which needle points. तो हम क्या देखेंगे कि वो हमेशा सेम डायरेक्शन में ही पॉइंट करेगी, और वो डायरेक्शन कौन सा है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। Now look at the track your progress. Write T for true and F for false. Attraction is maximum at the poles of the magnet. Yes, this is true. Like poles attract each other. Like poles जो होते हैं वो repel करते हैं. So this is false. Magnetic poles always exist in pairs. Yes, this is true. Temporary and permanent magnet. बच्चों, ऐसी मैग्नेट जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर जाती है उसे हम बोलते हैं टेम्पररी मैग्नेट, और ऐसी मैग्नेट जो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिटेन करती है उसे हम बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। Some magnets lose their property of magnetism after a short period of time. These are called as temporary magnet. The magnet that do not lose their property of magnetism even after a long period of time are called as permanent magnet. Keeping magnet safe. तो बच्चों, हमारी मैग्नेट जो है वो अपना मैग्नेटिज्म ना लूज कर जाए, इसलिए हमें उसे बहुत ही ध्यानपूर्वक स्टोर करना होता है। सबसे पहली बात है, हमें कभी भी मैग्नेट को हीट नहीं करना चाहिए, उसे हैमर नहीं करना चाहिए, ऊपर से नीचे गिराना नहीं चाहिए, नहीं तो उसकी मैग्नेटिज्म जो मैग्नेटिक पावर है वो कम हो जाएगी। बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर्स। बार मैग्नेट को हमेशा पेयर्स में रखना चाहिए विद ऑपोजिट पोल्स ऑन द सेम साइड, separated by a piece of wood as shown in the figure given alongside. आप देख सकते हो हमने दो बार मैग्नेट को सिक्योर किया है उनके ऑपोजिट पोल्स के हिसाब से, और बीच में हमने एक वुड का ब्लॉक लगाया है। और अगर हमारे पास हॉर्स शू मैग्नेट है तो उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए बाय यूजिंग अ पीस ऑफ आयरन, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक कीपर। मैग्नेट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे कि टेलीविजन है, म्यूजिक सिस्टम है, कंप्यूटर है, इनसे हमें दूर रखनी चाहिए। नाउ यूजेस ऑफ मैग्नेट। चिल्ड्रन, मैग्नेट तो हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप ये देखो कि आपके टेलीविजन्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, टेलीफोन्स हैं, सबके अंदर मैग्नेट्स लगी होती हैं। इवन द डोर बेल हैज़ मैग्नेट इन इट। उसके बाद जो रेफ्रिजरेटर के दरवाजे हैं, इवन पेंसिल बॉक्स के जो आपके केसेस हैं, सब में मैग्नेट का यूज़ होता है।
Magnet can be used to separate iron pieces from the junk. Junk में से आप कूड़े में से भी आप आयरन के पीसेस को easily find कर सकते हो by using a magnet. Magnet are used in refrigerator doors to keep them closed. ATM cards, credit cards, information is stored in magnetic strip. Magnet are used in speakers, headphones and microphones. They are used in electric motors of fans, coolers and automobiles to generate power. They are used in picking up iron material or pieces from the waste. Now have a look on Wonderbox. William Gilbert was the first to investigate the phenomenon of magnetism. He also discovered that Earth itself is a weak magnet. William Gilbert was the first to investigate the phenomena of magnetism. Keywords and explanation. Magnet, a substance that has property of attracting materials like iron, cobalt and nickel. Poles, two ends of a magnet. Magnetic field, the region around a magnet where its influence can be felt. Magnetic compass, a device used for determining direction by means of magnetic needle. Attraction, a force by which two or more objects come close towards each other. Repulsion, a force by which two or more objects move away from each other. Now have a look on mind map, children. मैग्नेटिक फन, देखो दो टाइप के मटेरियल्स होते हैं, एक होता है मैग्नेटिक मटेरियल, एक होता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. अगर मैग्नेट की बात करी जाए तो ये दो टाइप की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल. इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसके अंदर डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है. पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. लाइक पोल्स रिपेल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट. Attraction is maximum at poles and repulsion property. Review zone, children. Tick the correct option. Which of the following are attracted by a magnet? बताओ जल्दी से, आंसर आप सबको पता है. अब ये तीनों ही iron, nickel and cobalt, they are all attracted by a magnet. So आप यहाँ पे all of these लिखेंगे. Which of the following are the two poles of magnet? तो they are south and north pole. Which of the following is used to find direction? It is a magnetic compass. Attraction in magnet is maximum at the poles. Very good. A freely suspended magnet aligns itself in which direction? Yes, tell me fast. It is north-south direction. So you will mark the C1. Fill in the blanks. Like poles of magnet. जल्दी बताओ क्या होता है like poles में? They repel each other. So you will write repel. Some magnets lose their property of magnetism. Magnetic force becomes negligible. Magnet should be kept away from all electrical devices. Paper is not a magnetic material. State whether the following statements are true or false. Material that attracted to magnet are called magnetic material. बिल्कुल सही बात है. This is true. Natural magnets have high magnetic power. नहीं, this is false. Magnet should not be heated, hammered or dropped from a height. True. North pole of two magnets attract each other. Nahi, this is false. Lodestone is a natural magnet. Yes, this is true. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely, children. Stay tuned for the new video. Till then, goodbye.